Hello, hi, namaste everyone. I am Monica. Welcome back to the channel that is Moni Super Classes. So today I am back with the topic of general awareness, and we are going to discuss three very important general awareness for the exam point of view. First we'll discuss the concept, and then followed by some important MCQ to test your knowledge, whether like how much you will get after understanding the context or concept. So I'll I'll most welcome to those. If you are returning subscriber, welcome. To those also who are new to this channel, please subscribe to the channel, click the bell icon, and so that in case you will be keep updated time to time whenever I post a fresh content on this channel. And you can also like our Facebook page, link in the description box. I guess that is lot to say, so time to plunge into the video. Let's just start it. हाँ जी, I'm starting with the first general awareness of Sustainable Development Goal India Index 2020 to 2021. So Niti Aayog with the partnership of Decade of Action. Niti, let me tell you one thing. Is in this video we are going to discuss Sustainable Development Goal in the Indian context के regarding. ठीक है. Again, Sustainable Development Goal have a global context also. फॉर दैट आई मेक अ सेपरेट वीडियो, लेकिन यहाँ पर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट 2021 में क्या प्रोग्रेस रही उस जनरल अवेयरनेस को डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन इंडेक्स, ये थर्ड एडिशन है 2020 से 2021 वाला, और इसको नीति आयोग ने रिलीज़ किया है. It has the context is to develop the collaboration with the United Nations in India. You can see right front on your screen we have a 17 sustainable development goal, and each goal have their own significance, and the ranking that been provided under this Indian index of the states and union territory based on these goal, which state able to achieve the 100% target in these goal, तो उनके बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड की गई है. अब क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग है तो सिर्फ इंडिया के रीजन इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के कॉम्पिटिटिवनेस के थ्रू रैंकिंग हम देखेंगे यहाँ पर. यू कैन सी इन दिस टेबल. ओके, सो द कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे वो 2015 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए थे. इस टेबल के अंदर ये जो टेबल है ये किस स्टेट ने किस गोल को लेकर टॉप स्कोर किया है उसके बेसिस पर है. बट द एग्जाम फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दिस केरला, लाइक विच स्टेट टॉप द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. तो केरला ने टॉप किया विद 75%, और यहाँ पर जो रैंकिंग दी जाती है वो 0 से 100, यहाँ पर जो रेंज है 0 से 100 है. अगर 100 किसी की रैंकिंग है किसी गोल के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब ये है कि उस स्टेट ने और यूनियन टेरिटरी ने 100% गोल अचीव कर लिया. ठीक है. सो लेकिन अगर 0 किसी की रैंकिंग है तो इसका मतलब ये है कि दैट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गेटिंग और बैक द बॉटम पोजिशन ऑफ द टेबल. नीति आयोग जो लॉन्च हुआ था इंडेक्स 2018 में टू मॉनिटर द कंट्री एज प्रोग्रेस एंड टू ऑल्सो फोस्टर और इनबिल्ड द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स? सी इट हेल्प्स द स्टेट्स टू like to show each other and for the positive competitiveness. Each and every states or union territory will at least make an efforts to achieve the basic goal, right, and which help our country from transition from developing to the developed one. तो यहाँ पर जो नीति आयोग है इसका जो फ्रेमवर्क है वो ट्विन मैंडेट वाला है. ट्विन मैंडेट का मतलब यहाँ पर ये है कि इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है. तो पहला जो कैटेगरी है वो है नीति आयोग का इन सोशल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स को लेकर इनको मॉनिटर करना, इनको अडॉप्टिंग करना और इनका सुपरवाइज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का. जो सेकेंड कैटेगरी है वो ये है प्रमोट करना कॉम्पिटिटिव एंड कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म स्पिरिट्स अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. सो दैट इज वाई इट हैज़ बीन like told the framework is a twin mandate. 2 broad category need to be work on simultaneously. So the index represent the articulation of comprehensive nature of global goal under the 2030 agenda. अब देखो जो टारगेट सेट किया गया है वो 2030 के एजेंडा के रिगार्डिंग किया गया था. यहाँ पर दिस इज समथिंग एवरीवन नो. यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी 2030 का एजेंडा वहाँ पर लिया गया था. 2000 अच्छा ये जो बात है वो 2015 की है. 2015 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी वहाँ पर ये 2030 के एजेंडा को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया गया था, जहाँ पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिए गए थे. एंड दैट लाइक अ बोल्ड कमिटमेंट वंस फिनिश व्हाट द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल स्टार्टेड. ओके,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करूँ इंडियन इंडेक्स के रिगार्डिंग, सो इट हैज़ अ ऑनलाइन डैशबोर्ड ऑल्सो, जहाँ पर आप जाके प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका ऑनलाइन डैशबोर्ड भी है और ये रेलिवेंस चेक करता है क्रॉस सेक्शनली, पॉलिसी वाइज, सिविल सोसाइटी वाइज, बिजनेस अकेडमिया, you can check everything there. Talking about the methodology, not that important, but there are some contexts, some line which is really important for the exam point of view, and the question can be framed directly from these point. तो पहला जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये जो है ये गोल वाइज कोर्स, अच्छा स्टेट्स फॉर ईच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जो SDG इंडियन कॉन्टेक्स्ट है वो कंप्यूट करता है गोल वाइज स्कोर ऑफ 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैविंग अ रेंज, एज आई टोल्ड यू इन अ प्रीवियस स्लाइड कि 0 से 100 के बीच रेंज है, बट इट हैज़ अ 4 स्टैंडर्ड्स। अब वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 4 कैसे हैं? पहला तो है अचीवर कैटेगरी, सेकेंड इज़ अ फ्रंट रनर, थर्ड इज़ अ परफॉर्मर कैटेगरी, एंड फोर्थ इज़ अ एस्पायरेंट। अगर 0 से 49 के इन बिटवीन स्कोर है किसी यूनियन, स्टेट एंड टेरिटरी का, तो वो एस्पायरेंट कैटेगरी के अंदर है। 50 से 64 रेंज के अंदर किसी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का स्कोर है तो दैट कम अंडर द परफॉर्मर कैटेगरी। सेम एज इफ एनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अचीव विद 100% टारगेट, दैट मीन that union territory and the state will able to back this first standard and the category that is the achiever one. तो यहाँ पर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इंडियन, इवन तो वी आर नॉट अचीवर येट, हम यहाँ पर फ्रंट रनर, आई मीन इन बिटवीन कैटेगरीज में है, मिडिल वाली, हम फ्रंट रनर है स्टेट, कई स्टेट्स के रिगार्डिंग, यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग, और कहीं कहीं पर हम परफॉर्मर है स्टिल, एंड बट वी आर नॉट एस्पायरेंट एज वेल। तो हम एस्पायरेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर वी कैन बी मूव बेस्ट फॉर, लाइक होप फॉर द बेस्ट, अचीवर कैटेगरीज में भी आ जाएंगे। Sustainable Development Goal Indian or India Index 2020, it has a more robust than the previous one. यहाँ पर जो SDG थर्ड एडिशन है 3.0, उसको रोबस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो सेकेंड एडिशन था हमारा 2019 से 2020 वाला, उसके रिगार्डिंग ये जो तीसरा वाला एडिशन है, थर्ड एडिशन है ना, इट कवर, आई मीन इट मेड इन सच अ मैनर, इट कवर द वाइडर कवरेज, टारगेट को लेकर, इंडिकेटर को लेकर, जो हमारे गोल्स हैं, तो इट हैव अ मोर कवरेज with the national indicator framework. तो यहाँ पर very important thing which you all need to focus on, that is in SDG we have a 115 indicator, 115 indicator, we have a 70 sustainable development goal target, and we have a 17 sustainable development goal. तो 17 sustainable development goal है, 115 इंडिकेटर है और 70 जो हैं टारगेट्स हैं। नेक्स्ट, अदर कंट्री हैज़ ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्कोर इम्प्रूव हुआ है 6 पॉइंट्स को लेकर। सेकेंड एडिशन में 16 पॉइंट्स रैंक थी और अभी 66 हो गई है, यानी हमने वी क्लाइंबिंग अपवर्ड 6 पॉइंट्स के थ्रू इम्प्रूवमेंट हुई है। और लेकिन कोई भी स्टेट, जैसे कि एज आई टोल्ड यू ना प्रीवियस स्लाइड, कोई भी एस्पायरेंट कैटेगरी में नहीं है, मतलब हर किसी का स्कोर 50 से ज़्यादा है, तो या तो हम परफॉर्मर है या हम फ्रंट रनर है, इवन तो वी आर नॉट अचीवर येट, इन फ्यूचर मे बी वी विल होप फॉर द बेस्ट। इंडिया हैज़ इम्प्रूवमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू द क्लीन एनर्जी, जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट है, हेल्थ है, 2020 के अंदर इंप्रूवमेंट वहाँ देखी गई है। एंड दे हैज़ बीन अ मेजर डिक्लाइन इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एज वेल एज अ डिसेंट फ्रेमवर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, आई मीन इन बिटवीन ये पेंडेमिक का भी जोर था, तो इस बेसिस पर डिसेंट ग्रोथ वर्क है यहाँ पर। लेकिन जो आई मीन इम्प्रूवमेंट देखी गई है वो हमारी क्लीन एनर्जी और जो अर्बन डेवलपमेंट है और हेल्थ के रिगार्डिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर द वन स्टेट टॉप और बैक द टॉप रैंक, दैट इज अ केरला विद 75 marks, okay, score, and followed by Tamil Nadu, the second position, third is Himachal Pradesh overall country wise, and these two state back the same score, that is a 72. Talking about the from the bottom range और एंड ऑफ द टेबल, जो सबसे कम जिन्होंने स्कोर किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, वो कंट्री, वो स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड एंड आसाम, दे आर द वर्स्ट परफॉर्मर अंडर दिस इंडेक्स।
Next general awareness, we have the IMD World Competitiveness Index. तो इंडिया मेंटेन 43rd रैंक ऑन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जो कंपाइल किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, ठीक है। और यहाँ पर देखा क्या जाता है, मतलब किस बेसिस पे कंपाइल किया गया है, इट हैज़ बिन कंपाइल टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकोनॉमिक अराउंड द वर्ल्ड वाइड, ओके, अराउंड द वर्ल्ड इन द ईयर। तो यहाँ पर उसके बेसिस पे इकोनॉमिक, आई मीन दिस कोरोना वायरस का हमारे इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बेसिस पर ये जो डेटा है, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल किया गया है, जहाँ पर इंडिया की जो रैंक है वो 43rd रैंक है। अगर हम टॉप स्कोरर की बात करें इस इंडेक्स के अंदर, तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क है। Next general awareness, the Global Peace Index 2021 announced. Let me tell you, this is the 15th edition of Global Peace Index that is announced by Institute of Economic and Peace. Okay, the institute established is from Sydney, and GPI, that is a Global Peace Index, is the world as leading measurement of global peacefulness. यहाँ पर 163, I mean in total 163 country, independent state and union territory participate in it, this Global पीस इंडेक्स 2020। तो 163 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की जो रैंकिंग है, देखो इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 135 है, बट अगर ओवरऑल रैंकिंग, आई मीन ओवरऑल टॉप जिसने किया था, वन कंट्री हु बैक द टॉप मोस्ट पोजीशन अंडर दिस इंडेक्स, वो आइसलैंड है। आइसलैंड रिमेन द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अ पोजीशन, आई मीन इट एबल टू बैक द सेम पोजीशन सिंस 2008। 2008 से ये आइसलैंड ही टॉप कर रहा है इस इंडेक्स के अंदर। अब इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, अब इंडिया की ओवरऑल जो पोजीशन है 163, 163 में से 135, 135 है, ठीक है। लेकिन अगर हम साउथ एशियन रीजन में देखा जाए, रीजन वाइज इंडिया एबल टू गेट द 5th पोजीशन इन द रीजन वाइज, साउथ एशियन रीजन के अंदर, एंड देन उसके बाद भूटान। तो इंडिया की ओवरऑल 135 रैंक है, और साउथ एशियन रीजन वाइज जो इंडिया की रैंक है इन दिस द ग्लोबल पीस इंडेक्स और द पीसफुल कंट्री, वो 5th कंट्री है इंडिया रीजन वाइज। Now the test your knowledge. Let's just discuss some MCQ. What you can do, just pause the video, read by yourself, select the answer and check whether you are right or wrong. Okay, so first question we have the dash addition of sustainable development goal in India index dashboard was released by नीति आयोग। तो यहाँ पर कौन सी वाला है जो 2021 में, जिसकी हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग, ये 3rd एडिशन था, ठीक है, 2020 से 2021 वाला। ग्लोबल पीस इंडेक्स अनाउंस बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ IEP, इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी। तो ये 15th एडिशन था, दिस इज द 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स एडिशन जो कि IEP ने अनाउंस किया था। और द नीति आयोग हैज़ अ डैश ओवरसी अडॉप्शन एंड मॉनिटरी ऑफ SDG कंट्री एंड ऑल्सो प्रमोट द कॉम्पिटिटिवनेस एंड कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब इसको क्यों बोला गया नीति आयोग की ये ट्विन फिल्म है, जैसे मैंने बताया था, इट हैज़ अ 2 मेजर कैटेगरी। पहला तो SDG का मॉनिटर करना है, उनको अडॉप्शन करना है, सुपरवाइज करना है। दूसरा है जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बीच जो कॉम्पिटिटिवनेस एंड द कॉर्पोरेट स्पिरिट को भी इंडल्ज करना है, उसको भी प्रमोट करना है। दिस फेडरलिज्म ऑल्सो नीड टू बी फोस्टर्ड अमंग्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द ट्विन फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट। Next we have the 2020 to 2021, the index show the country's overall sustainable development goal score 6 पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं। अगर हम सेकेंड एडिशन को देखा जाए SDG जो इंडियन इंडेक्स के अंदर था, दैट इज 16 रैंक, बट राइट नाउ इन 2021 SDG इंडिया इंडेक्स गेट द 66 रैंक। सो ओवरऑल 6 पॉइंट से हमने अपवर्ड जंप किया है, तो द फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। Okay. In dash, the United Nations Assembly adopted the 2030 agenda for sustainable development goal and that is the 25th. Okay. तो जो 25th है 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ये 2030 वाला एजेंडा अडॉप्ट किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग। देखो जो GPI है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको 2 पॉइंट नॉच से प्रीवियस रैंकिंग में जो रैंकिंग थी और अब जो रैंकिंग है उसमें क्या है, लाइक अगर हम कंट्रीज़ के वाइज देखा जाए ओवरऑल कंट्री इन द वर्ल्ड, सो इंडिया हैज़ अ 135th रैंक। ओके, इट हैज़ मूव अप टॉप नॉच, यानी जो प्रीवियस आई मीन जो 14th एडिशन था ग्लोबल पीस इंडेक्स का, उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो 133 थी, बट राइट नाउ इज़ अ 135। नो दैट वॉज अ 137, अभी 135 है, वी मूविंग अपवर्ड। और
रीजन वाइज देखा जाए तो इंडिया बैक द 5th रैंक. So the SDG Indian Index 2020 cover 17th goal 70 टारगेट 150 इंडिकेटर. ओके, तो 17 गोल हैं, 70 टारगेट हैं हमारे, 115 इंडिकेटर है अंडर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एंड इंडिया मेंटेन अ डैश ऑन एन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स compiled by the Institute for Management and Development that examine the impact of this COVID-19 on the economics around the world. तो इंडिया हैज़ अ 43rd रैंक all over the world under this competitive world competitive index that is compiled by IMD. So that's it, you give that much time. Thank you so much for joining me. Stay happy, stay healthy, stay clean, and again have a nice time. We'll meet in the next video. Bye bye.